is going to file his nomination today, and ahead of that, the Prime Minister is going to seek blessings of Ma Ganga. Today also is Ganga Saptami, a very, very auspicious day. Now, it's believed that it was today that Ma Ganga came on earth, answering prayers of millions of people who prayed for some relief from the heat, some relief from the drought, and that's when Lord Shiva sent Ma Ganga on earth. So today, on this auspicious occasion, the Prime Minister will be offering prayers to Ma Ganga. He's likely to take a holy dip at the Dashashwamedh Ghat. From there, the Prime Minister will head towards the Kal Bhairav temple, seek blessings of Kal Bhairav, and then there's going to be a meeting as well, about which we've been telling you. A show of strength is how many people are describing it, because 12 chief ministers are going to be present during that meeting in Varanasi. Apart from that, top leaders of the NDA will be present on ground as well. The meeting will take place ahead of nomination filing, and then during the auspicious Muhurat, anywhere between 11:30 to 12, that's when the Prime Minister is going to file his nomination here at the DM office. We are reporting from outside here. There's some restriction in terms of movement. Security has been enhanced. Barricades have been put up. All eyes, of course, are going to be on this. The Prime Minister is filing his nomination from Varanasi for the third time, seeking a third term as their Sansad, their MP, and also as the Prime Minister of the country. Talking specifically about the Varanasi seat now. Varanasi seat is where the Congress and the BJP have locked horns in the past. We're also getting reports now of the names of proposers that we told you just before break. There are in total 4 proposers who belong to various communities. So Sabka Saath message once again being given by Prime Minister Narendra Modi and the BJP. There's Pandit Ganeshwar Shastri, Baijnath Patel, Lalchand Kushwaha and Sanjay Sonkar, likely proposers for Prime Minister Narendra Modi. And we have Amit, who's getting us all these details. Okay, I'm being told that Vinod Mishra is also with us with more on this. Vinod, जो प्रस्तावक होंगे 4, उनकी सूची एक सामने आ गई है और जानकारी मिल रही है कि ये 4 लोग प्रधानमंत्री के साथ होंगे जब वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिल्कुल, देखिए, हमने देखा 2014 से लेकर ये 2024 है, 2 बार इससे पहले भी पीएम ने नॉमिनेशन फाइल किया है वाराणसी से, और उस वक्त ये कोशिश की जाती है कि जो वाराणसी के खास लोग हैं, जो समाज में जिनकी भूमिका जो इम्पोर्टेंस रखते हो, उनको पीएम अपने साथ जोड़ते हैं। उसमें ऐसे हर क्लास, हर सेक्शन के लोगों को इस नॉमिनेशन में शामिल किया जाता है, और कुछ ऐसे ही तैयारी इस बार भी नॉमिनेशन की है। जो 4 नाम अभी तक सामने आए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि गणेश्वर शास्त्री जो है वो है, उसके अलावा बैजनाथ पटेल है, लालचंद कुशवाहा है और संजय सोनकर है। ये 4 जो प्रस्तावक हैं उनके नाम हैं। गणेश्वर शास्त्री वही हैं जिन्होंने राम मंदिर में जो मुहूर्त निकाला था पूजन का, उन्होंने निकाला था, तो इनकी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से भी है। इसके अलावा आप देखें, अगर बैजनाथ सोनकर को, बैजनाथ पटेल को, लालचंद कुशवाहा को और संजय सोनकर, ये अलग अलग सेक्शन के, समाज के अलग अलग सेक्शन से आते हैं और इनकी भूमिका समाज में अलग अलग है अपने समाज के उत्थान के लिए। इस लिहाज से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हालांकि भी कहा जा रहा है कि कुछ और लोग जो 7 प्रस्ताव होते हैं उसमें 3 और लोग होंगे जो काशी के होंगे और सामान्य परिवारों से होंगे। तो ये माना जा रहा है कि पीएम जो है हर बार जब भी अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, ऐसे क्लास को, ऐसे सेक्शन को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रस्तावक बनाया जाता है, और उसी कड़ी में आज भी जो नाम आए हैं उसी को एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त हम जो है वो दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है। कुछ देर बाद पीएम जो है यहाँ पे आने वाले 8:30 का वक्त दिया गया था। कहा जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और सबसे पहले यहाँ पर जो है वो गंगा पूजन करेंगे, और उसके बाद ये जो प्रस्तावकों की लिस्ट है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उससे सबसे बड़ा मैसेज जो जाता है, जैसे मैं कह रही हूँ लगातार, सबका साथ, ये मैसेज है जो इस लिस्ट के जरिए भी देने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सभी वर्ग और सभी जातियाँ उनके लिए एक समान है। खासतौर पर वो लोग जो ओबीसी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब हैं, एंड दे इनफैक्ट आर ऑल्सो हिज proposers today. We have Anuja Kapoor, BJP spokesperson, and Saif Khan, leader of the Congress, joining us on the broadcast. Very quick reactions from our guests. That's the kind of outreach that the Prime Minister has as far as these communities are concerned. Saif Khan, प्रस्तावकों की सूची में भी ओबीसी समाज और दलित समाज को पूरा representation प्रधानमंत्री ने दिया है. How do you respond? मुझे लगता है कि मोदी जी जो हैं ये दिखावे के काम तो बहुत अच्छा करना जानते हैं। या तो आलोचना करनी
Yeah, I think just the show off, right? And there are different rule within the parties which needs to be followed by other BJP members, and he follows a different rule. 75 years वाली एज अब होने वाली है मोदी जी की, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। भले एक रूल बना रखा है कि दूसरे लोग जो है 75 पे जो अगर क्रॉस करेंगे तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। 2006 में आनंदी भाई पटेल को इसलिए रिजाइन करवाया था, मुझे याद रखना चाहिए, और देशवासियों को भी याद रखना चाहिए। दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। डबल फेसेस या डिस्क्रिमिनेशन की बहुत बड़ी मिसाल है मोदी जी जो आज नॉमिनेशन फाइल करने मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, सबका साथ सबका मैसेज की आप मोदी जी की उम्र का आप जिक्र कर रहे हैं। सो लेट अनुजा रिस्पॉन्ड टू इट। Anuja, please respond. सबका विकास कहाँ से? मोदी जी की Jai Shri Ram. I am very amazed to see what my Congress contender who's sitting right now, because this is how they're contending. 14 seats. Sir, you just have 14 seats in your kitty. So better you just look into it and give us a strong opposition, because Modi ji is here to stay till 2029. So what you are just talking about 2024, would not you just see that in Varanasi, the road show has already given you this, that the Modi ji is going to stay here for 2029. And what we will see around is NDA last year also has always been a winner. What we will see in West Bengal, in Bihar, in Karnataka and Maharashtra would be a very big catch. Now what we see accordingly in Jammu and Kashmir, Jammu Kashmir has given a fallout of which is for 28 years. It has given the highest fallout in its own Lok Sabha elections. And that is where we see. We also see Coimbatore, Annamalai, how the turnout has come out. All right, calm down, both of you, calm down, please. Calm down. I have to go across to my reporters to get you live updates. Stay on with us. I'll come back to you for your views. Amit Kumar is joining us on the broadcast now. Amit, प्रस्तावकों का नाम सामने आया, एक सूची. Likely these are the names of the proposers for Prime Minister Narendra Modi when he files his nomination. Amit, ये भी जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री अब दशाश्वमेध घाट जो हैं वो जा सकते हैं, जहां पर वो डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया। जी हाँ, देखिए, मुझे लगता है उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक ये वीडियो जारी किया है। मोदी की गारंटी के साथ साथ उन्होंने जो रिश्ता है 10 साल का बनारस के साथ, उसके बारे में बताया है उन्होंने। और उसमें टाइम्स ग्रुप के साथ जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने, जिसमें कहा था कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया, और उसमें वो भावुक हो गए थे, वो भी उसमें डला हुआ है। और एक तरह से कैसे जो बनारस पहले किस तरह से था और कैसे बदला है, तो उसकी जो जर्नी है वो पूरी बताई। और मुझे लगता है कि एक भावुक पल भी था, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक भावुक पल भी है कि तीसरी बार वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं वाराणसी से। और मैं ये कलेक्ट्रेट पे हूँ जहां पर ये होने जा रहा है, जहां पर वो करीब 11:40 का मुहूर्त कहा गया है कि वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। और उससे पहले दशाश्वमेध घाट पर वो स्नान करेंगे और काल भैरव के दर्शन भी करेंगे, और इसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। तमाम एनडीए के नेता, तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। सुरक्षा के जो ड्रिल्स है वो पूरे किए जा रहे हैं, तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर अंदर सर्किट हाउस है जहाँ पर तमाम मुख्यमंत्री जो एनडीए के हैं, बीजेपी शासित राज्य के हैं, वो आएंगे और यहाँ पर बैठेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात की अगर आपको याद हो कि 2014 की बात करिए तो उस समय गिरधर मालवीय, छन्नू लाल मिश्रा नाविक थे, एक वो थे निषाद जी, और बुनकर अशोक कुमार नामांकन में उनके प्रस्तावक बने थे। उसी तरह से इस बार अगर बात कीजिए तो पंडित गणेश्वर शास्त्री है जो कि प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त निकाला था, वो है। इसके अलावा जो 3 लोग हैं, जो तीनों सामान्य लोग यहाँ के हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो जुड़ाव है बनारस से वो कल दिखा। कल जिस तरह से रोड शो था, और जब भी यहाँ आते हैं तो बनारस के साथ जो एक उनका रिश्ता है, उन्होंने उस जो वीडियो, भावुक वीडियो जो डाला था, पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मैं जब आया था तो उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, और अब माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और अब 10 साल बाद मैं ये कह सकता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। और उन्होंने कहा कि 10 साल में मैं बनारसी हो गया हूँ। तो ये बातें उन्होंने कही और एक रिश्ता जोड़ा बनारस के साथ, और वो रिश्ता बहुत ही भावुक है। और हम लोगों ने कल जब रोड शो के दौरान वहां पर मौजूद थे तो देखा है कि इस तरह से लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अपने सांसद को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। तो एक रिश्ता बना हुआ है। और मैं खुद, क्योंकि मैं बनारस में पढ़ा हूँ, बीएचयू से पढ़ा हुआ हूँ, और इस बनारस को बदलते हुए मैंने देखा है। जब 2014 में आया था, उससे पहले जब पढ़ाई करता था
तो उसके पहले जो 15-17 साल पहले की बात और 2014 में कुछ बदला नहीं था, लेकिन 2014 के बाद और 2024 की जब मैं बात करता हूं तो जमीन आसमान का बदलाव है। विरासत के साथ विकास का जो एक मॉडल नरेंद्र मोदी ने पेश किया है, वो अपने आप में एक अद्भुत चीजें दिखती है, सड़कों पर दिखती है। जो पुरानी संस्कृति है उनको कैसे धरोहर को बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आप जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यूनिक रिश्ता है, स्पेशल रिश्ता है। एंड आई वांट टू गो अक्रॉस टू आवर गेस्ट अनुजा। प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये गाड़ी पर चढ़कर हाथ हिला देने से कुछ नहीं होता, इसका मतलब कोई कनेक्ट नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों के इश्यूज जानते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको जैसा राजीव गांधी किया करते थे, पैदल गांव में जाया करते थे, वैसा करना होगा। I would only like to say to Priyanka Gandhi, please look into your Adhir Ranjan Chaudhary and Rahul Gandhi. They have become a star campaigners. So let's not get into the debate. What we know, you have never done it. And this is what has been shown. In the smaller of states, you can just go around and see how Modi ji's people are doing aarti. Can you believe this is what we have seen throughout? The aarti is being happening around. So don't you try to derail people and talk about it that somebody is doing like this. What you are doing, you are nowhere in the scene. Rahul Gandhi is only talking about caste census. Sir, what is your caste? Have you ever thought about that? So you're just talking about, now you're talking about India, Arab and Italy and South Africa and all these people in India. So I think you are a star pracharak. Please keep on speaking in an absurd manner because this helps Modi ji to come back in the third. I give all my best Saif Khan, wishes. quick counter before I go back to our reporters for live updates. The Prime Minister will be reaching the Shashwamedh Ghat any time now. Quick counter. See, firstly, I would like to tell her that, if she turns 75 years, she'll be the first one that BJP would be asking her to resign. Secondly, let me tell you, as per the CSDC, right, the elections are now being conducted on unemployment and price rise. Let's face the fact that Modi ji needs to be answered. Second, the corruption index of transparency recently came out with a figure at 85 rank, India's position on 2022. Let me tell you, madam, you will be retired 75 years. There is a different rate. So आप अपना सोचें पहले, उसके बाद दूसरे सोचेगा. Okay, for Anuja 75, there's a really long time. बहुत समय अभी उनको 75 होने के लिए. आप अभी से उनके फ्यूचर की भविष्यवाणी मत कीजिए सैफ खान जी. Thank you very much Anuja and Saif Khan for joining us on the broadcast. June 1st is when the polling will happen for the seat of Varanasi in the 7th phase. आखिरी चरण में वाराणसी के लिए चुनाव होने वाला है. A very quick break. Thank you to our guests. Our reporters will be back with us on the other side.